سب کی خبر لے، سب کو خبر آپ دے۔ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل۔ آداب، میں ہوں صفدر رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اب دیکھیں ایک اہم خبر۔ آپ سب نے یہ کتھن اور مشہور گانا ضرور سنا ہوگا کہ باپ 1 نمبری تو بیٹا 10 نمبری۔ آج کے سمے میں یہ کتھن کئی مولویوں پر پوری طرح سے صحیح ثابت ہوتا دکھ رہا ہے، چاہے مرحوم مولانا کلب عابد کے بیٹے مولانا کلب جواد ہوں یا بے باک اور نڈر مولانا آغا روحی کے بیٹے مولانا عباس ناصر اباقاتی، چاہے ہر دل عزیز مولانا مرحوم مرزا اطہر کے بیٹے مولانا یعقوب عباس ہوں یا ایسے دوسرے کئی مولانا، یہ سبھی اپنے والد ماجد کے مقابلے 10 نمبری ہی نہیں بلکہ 100 نمبری کہے جا سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے مرحوم مولانا کلب عابد ہوں یا مولانا آغا روحی یا مرحوم مولانا مرزا اطہر، ان سب نے اپنی زندگی میں ایسے کام انجام دیے ہیں جو قوم کو نقصان پہنچانے والے تھے۔ بہت سے لوگ چونک جائیں گے اور ناراض ہو سکتے ہیں، ان بزرگوں کے لیے ایسا کیوں بولا جا رہا ہے، لیکن ہم پورے ثبوت کے ساتھ ان تتھیوں کو پیش کریں گے کہ انہوں نے کس طرح سے وقف جائیداد کو بیچا اور قوم کو نقصان پہنچایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آج ان کی اولادیں قوم کو ان سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اس پر ہم وستار سے چرچا کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم چرچا کریں گے موجودہ سمے میں برباد ہو رہے وقف کی۔ فاروق آباد میں وقف کا برا حال ہے۔ ظفر ایڈوکیٹ کے مطابق وقف بورڈ کے چیئرمین اور بورڈ کے سنرکشک مانے جانے والے مولانا کلب جواد یہاں کی وقف سمپتی کو برباد کروا رہے ہیں، اسی لیے وقف کی زمین پر مندر تک بنا دیا گیا ہے اور وقف بورڈ و مولانا کلب جواد چپی سادھے ہوئے ہیں۔ اس معاملے میں ظفر ایڈوکیٹ کا کیا کہنا ہے، سنیں ان کی زبانی۔ وقف نمبر 184 نواب مہدی علی خان، گرام نور پور جسمئی، فاروق آباد ضلع میں ہے۔ اس پر پورو ودھائکا ارملا راجپوت نے مندر دیوالی کی چھٹیوں میں بنا لیا اور متولی سید طاہر حسین رضوی خاموش رہے۔ دوسرا ہے وقف نمبر 188 نواب جعفری بیگم صاحبہ، یہ 1878 کا وقف ہے اور قائم گنج تحصیل میں 2 بیعنامے کرنے جمشید عباس ولد احمد عباس گئے تھے، جن کو ابھی 29 ستمبر 2023 کو متولی علی زیدی نے بنایا ہے۔ پہلے ان کو نکال دیا گیا تھا، ہٹا دیا گیا تھا، دیوار سے ان کو بنا دیا متولی، یہ بیعنامہ کرنے گئے تھے جمعے کو، لہذا السنکھک کلیان ادھکاری وقف سروے فاروق آباد نے آدیش بھیج کر تحصیل قائم گنج کے رجسٹرار اور تحصیلدار کو بھیجا کہ بیعنامہ تتکال پربھاؤ سے روک دیا جائے اور اس پر پنجیکرت نہ کیا جائے۔ جی، تو یہ 2 ہو گیا۔ تیسرا آپ ٹاکیز کا بتا رہے تھے۔ تیسرا جو ہے وہ وقف نمبر 185 فاروق آباد میں ہے، وہ نواب عابد عسکری کا ہے۔ اس پر گورہری کا ٹاکیز بن رہا تھا، منڈپ بن رہا تھا اور دہلی کی ایک فرم سے اس نے کانٹیکٹ کیا تھا جس کو اس وقت وسیم رضوی کے آدیش سے تتکالین ضلع ادھکاری نے مافیا گھوشت کر کے اور جیل بھیجنے کی تیاری کر دی تھی اور وہ مافیا گھوشت ہے، اس کا پستول بھی ضبط ہے۔ اب موجودہ متولی پھر وہی بنا دیے گئے ہیں جن کو ہٹایا گیا تھا۔ انہوں نے انڈرسٹوڈ رہ کے نواب غضنفر عباس کو متولی بنوایا اور ان سے اپنے نام مختار نامہ لکھوا لیا طاہر حسین نے، اور اس میں بڑا لمبا گولمال تھا۔ تب تیاگی جی نے ہٹا دیا تھا ان کو اور اس کا کوئی حساب کتاب انہوں نے نہیں دیا، انڈرسٹوڈ رہے
और शमीम नकवी ने फिर इनको बनवा दिया। ये सब मिली भगत है। ये काकस है फर्रुखाबाद में, जिसके सरबराह हमारे बावर्ची साहब हैं, अली जैदी हैं और कुछ लोग हैं यहाँ, और जिसमें सबका नायक जो है हमारे शमीम नकवी साहब है, वो कहते हैं लीगल एडवाइजर है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं अली जैदी के। अब भाई अल्लाह जाने क्या है, वक्फ नंबर 174 के मुतवल्ली भी है वो। इसी तरह लखनऊ के ताल कटोरा की जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान बना लिया गया है। एक नहीं 4 मकान बना लिए गए और पुताई करके पूरी तरह से फिट कर दिया गया है, लेकिन मौलाना जवाद के मुंह से एक लफ्ज इसके खिलाफ नहीं सुना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां मौलाना जवाद के पिट्ठू शादाब आगा को मुतवल्ली बनवाया गया है, जो मौलाना जवाद की मंशा पूरी कर रहे हैं। करबला की जमीन पर 4 मकान बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन बोर्ड ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, न ही उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और न ही दूसरी कोई कार्रवाई की। इससे पूर्व भी निर्माण की कोशिशें की गई थी, पर उस समय के मुतवल्ली सैयद फैजी ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया था और निर्माण नहीं होने दिया था। मौजूदा समय में भी सैयद फैजी को ताल कटोरा करबला की जमीन पर अवैध निर्माण नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। वे भी दोषी हैं, क्योंकि शादाब आगा उनके रहमो करम पर काम कर रहे हैं। कागजी तौर पर मुतवल्ली इस समय सैयद फैजी हैं। इसी तरह फैजाबाद में वक्फ जायदाद को बुरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है और वक्फ बोर्ड गूंगा, बहरा और अंधा बनकर सब कुछ देख रहा है। फैजाबाद के शानदार एडवोकेट के मुताबिक बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी को उन्होंने समय समय पर फैजाबाद के वक्फ की बर्बादी की तफसील बताई है, लेकिन अली जैदी ने कोई कारगर कार्रवाई नहीं की। इसके लिए आने वाली नस्लें मौलाना जवाद और चेयरमैन अली जैदी को किस तरह की गालियां देंगी, वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मुख्य मुद्दे की कि उन लोगों ने जिनका नाम बहुत ही इज्जत एहतराम के साथ लिया जाता है, उन्होंने भी वक्फ को नुकसान पहुंचाया और गलत तरीके से रुपये हासिल किए। शरीयत की नजर में ये पैसा नाजायज था। वक्फ को बेचकर गलत तरीके से हासिल की गई इस रकम को उन्होंने जरूर बच्चों की परवरिश पर लगाया होगा, इसीलिए बच्चे अब बड़े होकर उनसे ज्यादा वक्फ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनके शिकम में क्या है आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मौलाना कल्बे आबिद मरहूम का, जिन्होंने वक्फ की कई जगहों को बेचा, जबकि उन्हें इसे बेचने का कोई हक नहीं था। मौलाना कल्बे आबिद का ये अमल शरीयत और वक्फ एक्ट के खिलाफ था। लखनऊ स्थित इस वक्फ का नंबर 218/7 है। ये वक्फ अली जान खां की वक्फ जायदादों में से एक जायदाद थी। मालूम हो कि नवाब अली जान खां ने 88 बीघा पुरनिया, अलीगंज, मड़ियाओं, दोगावा, कटरा, अबू तराब खां में महल, इमामबाड़े, अस्तबल और मकान वक्फ किए थे। उन्होंने अपने वसीयतनामे में लिखा था कि उनके बाद इसका मुतवल्ली खानदाने गुफरा माप का आलमी दीन होगा, प्राथमिकता मुजतहिद को दी जाएगी। मौलाना कल्बे आबिद से पहले उनके वालिद और उनके वालिद इस वक्फ के मुतवल्ली थे। हालांकि मौलाना कल्बे आबिद
मुज्तहिद नहीं थे, लेकिन बयाननामे में उन्हें मुज्तहिद लिखा गया है। मौलाना कल्बे आबिद के समय में शिया वक्फ बोर्ड में कंट्रोलर पद हुआ करता था। उस समय बोर्ड के कंट्रोलर इम्तियाज हुआ करते थे, जो काफी सख्त थे। उन्होंने मौलाना कल्बे आबिद मरहूम की इस हरकत को अपराध माना और चौक थाने में मौलाना कल्बे आबिद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। बताया जाता है कि FIR दर्ज होने के बाद मौलाना कल्बे आबिद बेहद डर गए और लखनऊ से अलीगढ़ भाग गए। इसके बाद लखनऊ के कई मौलाना ने दखल दिया। इनमें मरहूम मौलाना ताहिर जरवली और मरहूम मिर्जा अतहर मुख्य थे। इसके बाद बोर्ड के कंट्रोलर इम्तियाज ने तय किया कि मौलाना कल्बे आबिद तमाम वक्फ से इस्तीफा दें और वक्फ जायदाद को बेचने से हासिल की गई 10,000 रकम वापस करें। मौलाना कल्बे आबिद ने अली जान समेत तमाम वक्फ से इस्तीफा दे दिया और 10,000 रुपये वापस किए, जिसकी बोर्ड ने अली जान के नाम से FD कराई। इसके बाद कंट्रोलर इम्तियाज ने ये तय किया कि अब किसी मौलाना को वक्फ का मुतवल्ली नहीं बनाया जाएगा और उन्होंने मोहम्मद फाजिल को वक्फ अली जान का मुतवल्ली बनाया। उनके इंतकाल के बाद बहार आलम और वकार को संयुक्त रूप से इस वक्फ का मुतवल्ली बनाया गया। कुछ दिनों बाद वकार ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बहार आलम पूरी तरह से इस वक्फ के मुतवल्ली बन गए। इसके कुछ मकानों को लेकर उनकी मौलाना कल्बे जवाद से तू तू मैं भी हुई और बाद में मौलाना कल्बे जवाद ने बहार आलम को हटवाकर स्वयं अली जान के मुतवल्ली बन गए। ये वक्फ आजकल इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस वक्फ की एक जगह को लेकर गुप्त जांच चल रही थी। बताया जाता है कि इस वक्फ की एक जगह को खुर्द-बुर्द करने के चक्कर में मौलाना जवाद थे और वक्फ के इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट ऐसी पेश की जिससे मौलाना कल्बे जवाद की मंशा पर पानी फिर गया और अब वे इसे नहीं बेच सकते। इस मकान का नंबर 238/97 और 98 है। बताया जाता है कि इस वक्फ के कई मकानों पर मौलाना कल्बे जवाद की नजर गड़ी हुई है और वे इसे बिकवाना चाहते हैं। उनका दावा है कि कई मकान उनकी वालिदा के जहेज के हैं, जबकि वक्फ के जानकारों का कहना है कि उनका ये दावा गलत है। मौलाना आगा रूही ने आगरा के वक्फ को किस तरह बर्बाद किया, ये किसी से छुपा नहीं है और अब उनके बेटे अब्बास नासिर उनसे 2 कदम आगे हैं। जहां तक मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर का नाम लिया जाता है तो उन्होंने वक्फ की जायदाद को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, उन्होंने शिया कॉलेज को नुकसान पहुंचाया है और शिया कॉलेज को नुकसान पहुंचाने में यासूब अब्बास उनसे 100 कदम आगे बताए जाते हैं। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि मौलवियों ने सबसे ज्यादा वक्फ को नुकसान पहुंचाया है। अल्लाह के दरबार में उन्हें सख्त सजा दी जाएगी और उल्टा करके पिटवाया जाएगा, भले ही वे कितने बड़े मौलाना क्यों ना रहे हों। बहरहाल मौलवियों ने वक्फ को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वक्फ जायदाद को बचाने के लिए कंट्रोलर इम्तियाज जैसा संरक्षक चाहिए, न कि अली जैदी जैसा जिसके चेयरमैन बनने के बाद
वक्फ जायदाद की बर्बादी का सिलसिला अभी तक जारी है। वक्फ अली जान खां की कितनी संपत्ति थी और उसके साथ क्या सलूक किया गया और कितनी संपत्तियां बची हैं, इन सवालों को लेकर हम सामाजिक कार्यकर्ता और इस वक्फ के मुतवल्ली रहे बहार आलम से बात करेंगे। इसे हम अगले एपिसोड में पेश करेंगे, जिसमें बहार आलम ने कई गंभीर खुलासे किए हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।